Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Components of Food. Introduction. We already know that food products are obtained from plants and animals. We all enjoy eating different types of food items daily. These include bread, wheat, rice, vegetables, cereals, pulses, butter, curd, fish, water, etc. These food items supply nutrients for the growth, function and maintenance of our body. In other words, food is the source of nutrients required for building healthy body. देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमें जो फ्रूट प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन करते हैं या तो वो हमें मिलते हैं प्लांट से या फिर हमें एनिमल से। तो ये जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, राइट। अब देखिए दूसरे शब्दों में हम कहें कि फूड जो है आपका सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो हमें हेल्दी बॉडी को बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। Components of food. The fundamental functions of food are to give energy to do work, protection from diseases, materials for growth and development of body, materials for repair of cells and tissues, regulation of body processes to maintain our life. तो देखिए ये बेसिक आपके फंक्शंस है फूड के, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, राइट, आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करना, डिसीज से प्रोटेक्शन, आपकी बॉडी का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, या फिर जो वॉर्न आउट टिश्यूज हैं या सेल्स हैं उनको रिपेयर करना। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैव सम पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस because they consist of certain ingredients known as nutrients. These nutrients are very significant for our body. We should eat a balanced diet rich in all the necessary nutrients. The process of consumption and utilization of food is called nutrition. अब देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये सर्टेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके फूड्स में पाए जाते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसीलिए हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अब न्यूट्रिशन आपका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है आपका आप जो फूड को कंज्यूम कर रहे हैं एंड ना उस फूड का यूटिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। On the basis of their chemical composition, nutrients found in food are categorized as carbohydrates, proteins, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, roughage, फाइबर्स। तो देखिए ये फूड आपके जो कंपोनेंट्स हैं ये आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके फूड में पाए जाते हैं। Carbohydrates form a staple diet as they are the main source of energy. They are also known as energy giving foods. Carbohydrates are formed of carbon, hydrogen and oxygen. They make the bulk of our diet. They are the energy giving components of food. Wheat, rice, maize, sweet potatoes, bananas, corn, glucose, etc. are good sources of carbohydrates. All these food items consist of carbohydrates in the form of starch. Others are found in the form of cellulose and sugar. अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। एंड कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और देखिए आपके सब्सटेंसेस हैं जिनसे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, राइट। इसके अलावा जो दूसरे आपको मिलते हैं सेल्यूलोज और शुगर की फॉर्म में। Starch is available mainly in rice, wheat, maize and other cereal crops. Sugars are found in fruits, sugarcane and sugar beet. Sugar and starch constitute a big part of our food. अब देखिए स्टार्च जो आपका मेनली होता है आपका जैसे राइस, व्हीट या फिर मेज में या फिर दूसरे सीरियल क्रॉप्स में। शुगर आपका पाया जाता है फ्रूट्स में क्योंकि आपके फ्रूट्स मीठे होते हैं, राइट। शुगर केन या शुगर बीट में। शुगर एंड जो स्टार्च हैं आपके ये हमारे फूड का बहुत बड़ा पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। Did you know an average adult needs to take 250 to 350 ग्राम of carbohydrates per day? एक एवरेज एडल्ट की देखिए इतनी रिक्वायरमेंट होती है पर डे, उनको इतना कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। Cellulose act as a roughage. It is present in the cell walls of plant cells. It is present in fruits, vegetables and other plant materials. अब देखिए सेलुलोज आपका रफिश की तरह एक्ट करता है और ये आपका पाया जाता है आपके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में या जो आपके दूसरे प्लांट मटेरियल्स होते हैं। Activity 2.1 Test for starch. Take a small amount of food item in a test tube. Put 2 to 3 drops of dilute iodine solution. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue-black? A blue-black color indicates that it contains starch. Now you can repeat this test on other food items. अब आपको ये टेस्ट करना है कि किसी पर्टिकुलर फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, कोई टेस्ट ट्यूब में किसी भी फूड आइटम का छोटा सा अमाउंट लेना है, देन उसमें आपको 2 to 3 ड्रॉप्स डालने हैं आयोडीन सोल्यूशन के। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या कोई चेंजेस आए हैं। अगर जो कलर है आपका ब्लू ब्लैक हो जाता है
ब्लू ब्लैक हो जाता है, दैट मीन्स उसमें स्टार्च है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को या इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं अदर फूड आइटम्स के साथ। Proteins are made up of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. They are also called body building food. They are necessary for our growth, repair and regulating various body functions such as digestion. Proteins are obtained from plants as well as animal sources. Sources of plant proteins are pulses, soybean, etc. Meat, eggs, fish and milk are sources of animals' proteins. The protein present in milk known as casein. अब देखिए प्रोटीन्स आपके कैसे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से, और इन्हें कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, इसके अलावा रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, बहुत सारी बॉडी फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जैसे कि आपका डाइजेशन, राइट। प्रोटीन्स आपको प्लांट से मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, जैसे कि अगर हम पल्सेस की बात करें, जैसे आपको बताया था वो प्रोटीन रिच होती हैं, आपका सोयाबीन है, इसके अलावा आपका मीट, एग्स, फिश, इनमें भी आपका प्रोटीन होता है और ये एनिमल प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन आपका मिल्क में होता है उसे हम कहते हैं केजीन, रिमेंबर दैट। Activity 2.2 Test for protein. Take a small quantity of a food item, grind it and put the paste or powder in a test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. Now add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. Shake it well. What do you observe? Did the content of the test tube turn violet? A violet color indicates the presence of proteins in the food item. अब आपको प्रोटीन को टेस्ट करना है तो आप कोई भी फूड आइटम का छोटा सा क्वांटिटी लेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे एंड देन आपका जो पेस्ट या पाउडर है उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। उसमें आप 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे, देन टेस्ट ट्यूब को आपको अच्छे से शेक करना है। इसके बाद आप उसमें डालेंगे 2 ड्रॉप्स, आपको डालनी है एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आएगा। देन आपको 10 ड्रॉप्स ऑफ डालना है किसके सोल्यूशन की, कॉस्टिक सोडा। उसको अच्छे से शेक करना है। फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या उसका कलर जो है वायलेट हुआ है। अगर वायलेट कलर आता है दैट मीन्स उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। फैट्स like carbohydrate, fats are also made of carbon, hydrogen and oxygen. They are also energy giving foods. They give more energy than carbohydrates. They actually give twice the energy as compared to carbohydrates. That is why they are known as energy banks of our body. अब देखिए फैट्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स की तरह आपके बने हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, एंड ये भी आपके एनर्जी गिविंग फूड है, बट ये कार्बोहाइड्रेट के कंपैरेटिवली आपको डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट और इसीलिए इनको कहा जाता है एनर्जी बैंक्स ऑफ आवर बॉडी। फैट्स को सोर्सेज ऑफ फैट स्टोर इन आवर बॉडी कीप्स अस वार्म। फैट्स कम फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। अब देखिए फैट जो हमारी बॉडी में स्टोर रहता है वो हमको वार्म रखता है। अब फैट आपको प्लांट से भी मिलता है एंड एनिमल से भी मिलता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, चीज, मीट, butter, etc. The fats that are obtained from animals are known as animal fats. Fats are also present in plant sources such as dry fruits, coconuts, peanuts, sunflowers, vegetable oils, etc. They are called vegetable fats. अब देखिए जो फैट आपको एनिमल से मिलता है एनिमल फैट्स, जो वेजिटेबल्स से मिलता है यानी जो प्लांट से मिलता है वो वेजिटेबल फैट्स। लाइक आपको ड्राई फ्रूट्स में भी आपका फैट्स होता है, कोकोनट्स है, पीनट्स है, सनफ्लावर्स है, राइट। Activity 2.3 Based on the sources, classify the commonly used fat-rich food materials in the following table. ये आपको खुद से करना है। घी आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से या एनिमल से। सोयाबीन आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से या एनिमल से, ये आप खुद से करेंगे। Vitamins. Vitamins are required for carrying out various biochemical reactions in our body. They are required to keep our body fit and healthy. Though they are required in small quantities, the deficiency may lead to diseases. अब देखिए जो vitamins होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं vitamins, और ये हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी में रखते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बट अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाए यानी कमी हो जाए तो उसकी वजह से बीमारियाँ लग जाती हैं। Did you know vitamin B was once thought to be a single vitamin, but later it was found that it comprises of 8 distinct vitamins. So it is referred to as vitamins B complex. देखिए पहले ऐसे माना जाता था कि जो विटामिन बी है वो एक सिंगल विटामिन है, बट इसके बाद जब स्टडी हुई तो पता चला कि ये एक 8 डिस्टिंक्ट विटामिन से बना है, इसीलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। Vitamins are vital as they help to fight against diseases and protect our body in many ways. Vitamin A helps in keeping our eyes and skin healthy. Vitamin B is required for proper growth.
Vitamin C helps in keeping gums, skin and teeth healthy. Vitamin D strengthens the bones. अब देखिए vitamins बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, राइट क्योंकि हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं, राइट और हमारी बॉडी को डिसीज से फाइट करने में भी हेल्प करते हैं। अब जैसे विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए जो है हमारी आईज एंड स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन बी जो है उसकी ज़रूरत होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। विटामिन सी का काम क्या है, ये हेल्प करता है गम्स, स्किन एंड टीथ को हेल्दी रखने में। इसी तरह से जो विटामिन डी है ये हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करता है। Vitamin E helps in body functions and develops a resistance against infections. Vitamin K is required for proper functioning of the liver and helps in clotting of blood. अब देखिए आपका विटामिन के किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आपकी बॉडी फंक्शंस में एंड डेवलप करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसी तरह से विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग द लिवर एंड हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। द फॉलोइंग टेबल शोज द सोर्सेज ऑफ विटामिन। ओके अब आपको देखिए एक टेबल दी गई है, विटामिन ए कहाँ से मिलता है, उसके सोर्सेज गिवन है। लाइक देखिए विटामिन ए के सोर्सेज हैं आपके लिवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड कैरेट। विटामिन बी के सोर्सेज हैं आपके मिल्क, एग, मीट एंड सीरियल्स। इसी तरह से विटामिन सी आपको मिलता है सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि जो आपके खट्टे फ्रूट्स होते हैं लाइक आंवला, लाइम, लेमन, ऑरेंज, गुआवा। विटामिन डी मिलता है मिल्क, फिश, लिवर ऑयल, एग एंड सनलाइट, मॉर्निंग जो होती है आपकी मॉर्निंग की। Vitamin E, vegetable oils, whole grain cereals, and vitamin K, green leafy vegetables such as spinach, coriander leaves, and radish. Minerals. We require a lot of minerals to keep our body healthy, fit, and functioning properly. They are chemical compounds required for growth as well as carrying out certain body functions. Our body requires minerals such as calcium, phosphorus, iron, iodine, and sodium. These are very essential for our body. हमें बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए या उसकी फंक्शनिंग प्रॉपरली हो और हमारी बॉडी फिट रहे। अब आपके देखिए जैसे कि आपका कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, ये सारे ही आपके क्या हैं, आपके मिनरल्स हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Calcium and phosphorus are needed for the development of healthy bones and teeth. Iron is required in making our blood. Iodine helps our body to prepare thyroid hormone. Sodium and potassium help in maintaining the fluid balance in the body. Other minerals such as chlorine, copper, magnesium, and zinc are essential for many important biological reactions in our body. A higher amount of calcium is needed for growing children, nursing mothers, and elderly women. Vegetables like spinach, pulses, eggs, milk, and fruits contain minerals. अब देखिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ। आयरन की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड बनाने के लिए। आयोडीन जो है वो हेल्प करता है थायराइड हार्मोन बनाने में। सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो क्या करते हैं, फ्लूइड बैलेंस को हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा आपके जैसे क्लोरीन, कॉपर, मैग्नीशियम या जिंक, ये आपके जो मिनरल्स हैं ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होते हैं। हायर अमाउंट ऑफ कैल्शियम की ज़रूरत किसको होती है? ग्रोइंग चिल्ड्रन, नर्सिंग मदर्स यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, एंड एल्डरली वुमेन। तो आपके पास देखिए ये सारे फूड आइटम्स हैं जहां से आपको मिनरल्स मिलते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द सोर्सेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स। अब आपको देखिए एक टेबल दी गई है जैसे कैल्शियम। कैल्शियम आपका एक मिनरल है, आपका कहाँ से मिलता है? मेजर सोर्सेज आर मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मीट, फिश, बीन्स। आयरन आपको कहाँ से मिलता है? एग्स, ग्राउंडनट्स, स्पिनच और द ग्रीन वेजिटेबल्स। आयरन आपका मिलता है फिश या फिर आपकी सी फूड से। And phosphorus, green leafy vegetables, milk, bajra, nuts, ragi. Water. About 70% weight of our body is water. It is required for all functions. Water is an important constituent of body cells and most of the body processes are mediated by it. Water is not a food in itself but is an essential part of our diet. अब देखिए हमारी बॉडी का जो 70% वेट है वो किससे बना है? वो आपका बना है किससे? वाटर से। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है बॉडी सेल्स का, क्योंकि हमारे जो बॉडी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे आपके जितनी भी रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर वो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। वाटर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर। वाटर जो है आपके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट या मेंटेन रखता है। एक्सक्रीशन ऑफ
वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन रिक्वायर्स वाटर। अब जैसे देखिए बॉडी से जो वेस्ट निकलता है आपका, जैसे स्वेट है, यूरिन, उसमें भी वाटर की ज़रूरत होती है। Did you know the Australian kangaroo rat never drinks water? It gets all the water it needs from the food it eats. जो ऑस्ट्रेलियन कंगारू रैट है ये पानी कभी भी नहीं पीता, तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है? जो ये खाना खाता है उससे। Activity 2.4 Test for water in food items. Take some food materials such as potatoes, slices, lady's fingers, spinach, etc. and weigh them with the help of a weighing balance. Note their weight. Keep these vegetables out in the sun for 4 to 5 days. Now weigh them. We observe that these vegetables are now lighter in weight. These vegetables are lighter because the water present in the vegetables was lost in the sun. अब आपको ये टेस्ट करना है कि फूड आइटम्स में वाटर है या नहीं, तो आपके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ फूड मटेरियल्स को इकट्ठा करना है, जैसे लेडीज फिंगर है, स्पिनच है या पोटैटो। अब आप उनको क्या करेंगे, वेइंग बैलेंस की मदद से उनको वे करेंगे, उनका वेट नोट करेंगे, फिर आप उनको 4 से 5 दिन के लिए सनलाइट में रख देंगे और उसके बाद जब आप उनको वे करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका वेट जो है वो कम हो गया। तो वेट कम क्यों हुआ, क्योंकि उन वेजिटेबल में जो वाटर प्रेजेंट था वो सन में लॉस्ट हो चुका है। बॉडी वाटर कंटेंट में गो डाउन ड्यू टू एक्सेस स्वेटिंग और डायरिया। ड्यूरिंग acute diarrhea and vomiting, water is lost from the body along with mineral ions. Such patients get dehydrated. Dehydration of the body leads to muscle cramps. In such situations, one should drink ORS, oral rehydration solution. ORS contains water, lemon, juice, salt and sugar. It can be prepared instantly and can be given to the patients. कई बार क्या होता है कि जो बॉडी में वाटर कंटेंट होता है वो डाउन हो जाता है, कई बार एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है या डायरिया हो जाते हैं, राइट। और अगर एक्यूट डायरिया या वॉमिटिंग हो रहा है तो वाटर जो है हमारी बॉडी से तो लॉस हो ही रहा है, साथ ही साथ मिनरल आयंस भी आपके लॉस हो जाएंगे, तो जो पेशेंट है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशंस में ORS दिया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ORS में आपका वाटर होता है, लेमन होता है, जूस एंड सॉल्ट एंड शुगर। इसको आप इंस्टेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। Roughage. Roughage is the fiber content of the food. It is mainly provided by plant products in our food. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage आपकी फूड का फाइबर कंटेंट होता है और ये मेनली आपको प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है। जैसे अगर हम होल ग्रेन्स की बात करें, पोटैटोज, पल्सेज या फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की, ये सारे ही आपके रफेज के सोर्सेज हैं। Roughage helps our body get rid of undigested food. It prevents constipation. Roughage हमारी बॉडी में जो undigested food होता है उससे हमें छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ ये कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करता है। Balanced diet. A diet which provides all the essential nutrients required by the body in the right amount is called a balanced diet. A diet should also contain a good amount of roughage and water. अब देखिए एक डाइट जिसमें आपके सारे ही न्यूट्रिएंट्स आपकी अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। एंड बैलेंस डाइट में आपका रफेज एंड वाटर भी होना चाहिए। अ सैंपल ऑफ बैलेंस डाइट। Our body needs all the essential nutrients in order to maintain normal growth and development. All the components must be present in our diet. Our diet must include a variety of food items that will provide us necessary amounts of carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. अब देखिए क्या होता है कि हमारी बॉडी को सारे ही न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, राइट, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो इसीलिए हमारी डाइट में आपका जितना आपको कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है या फैट्स की, प्रोटीन्स की, विटामिन्स या मिनरल्स, ये सभी होना बहुत ज़रूरी है। आवर डाइट शुड ऑल्सो कंटेन द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ फाइबर एंड वाटर। इसके अलावा हमारे डाइट में फाइबर एंड वाटर भी होना चाहिए। Different people have different nutrient requirements. A balanced diet depends on the age, sex and the type of work a person does. अब देखिए different people की different nutrient requirement होती है और एक्चुअली बैलेंस डाइट जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी एज कितनी है, आपका सेक्स क्या है, यानी आप मेल है या फीमेल है, या किस तरह का काम एक पर्सन करता है, राइट। The nutritional and energy requirements of people change with age. Males need more energy giving foods than female of the same age. Remember that males की जो energy की requirement होती है वो female से ज़्यादा होती है जो same age के होते हैं। The kind of food needed by an individual also depends upon the kind of work he/she does. A laborer need more energy-rich food than an executive. अब देखिए कोई अगर हार्ड वर्क कर रहा है, जैसे कि लेबरर की बात करें हम, तो उसको ज़्यादा एनर्जी रिच फूड की ज़रूरत होगी कंपैरेटिवली एन एग्जीक्यूटिव।
Did you know midday meal is a scheme launched by government for school going children to prevent malnutrition in them? Midday meal scheme जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जिससे कि malnutrition को प्रिवेंट किया जा सके स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में. Junk food and obesity. Obesity is a condition in which a person gains abnormally more weight. It is mainly caused due to overeating and lack of exercise. ओबेसिटी का मतलब होता है आपका मोटापा, जिसमें कोई भी पर्सन जो है वो वेट गेन कर लेता है एबनॉर्मली. अब ये ओवर ईटिंग की वजह से भी हो सकता है, राइट, या फिर एक्सरसाइज की कमी से भी हो सकता है. द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ईट अ लॉट of junk food such as burgers, chips and soft drink. A large amount of fat or sugars is present in these food items. अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, उनको बर्गर, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये बहुत पसंद आते हैं, राइट. और अगर जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ हो गया फैट या शुगर का, इन फूड आइटम्स में बहुत ज़्यादा होती हैं. ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी द फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी लीडिंग टू ओबेसिटी. और क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं हो पाती है तो फैट जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है. Maintenance of food quality. It is necessary to maintain the quality of food that we eat for maintaining good health. Food processing. The food processing includes the following step: cleaning of food, proper storage of food, correct method of cooking. तो देखिए ये आपके कुछ स्टेप्स हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए. देखिए हमको फूड की क्वालिटी को भी मेंटेन करना है, जिससे कि हमारी अच्छी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे. Almost all food is processed in some way or the other before it is eaten. The main reason is to eliminate microorganisms which may spoil the food and cause diseases. During the processing or cooking of food, the nutrition value is often altered. If the vegetable and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. So it is sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet. अब देखिए ऑलमोस्ट आपका जितना भी फूड आइटम होता है वो प्रोसेस होता है किसी ना किसी तरह के. मेन रीज़न क्या होता है कि उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे खाने को स्पॉइल करते हैं उनको एलिमिनेट करना, या कोई इनमें कोई डर्ट है तो उसको एलिमिनेट करना, राइट. लेकिन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि प्रोसेसिंग के दौरान या कुकिंग के दौरान कई बार जो किसी फूड की ना न्यूट्रिशन वैल्यू ऑल्टर हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कट करने के बाद उसको वॉश किया है तो क्या होगा, इसमें उसमें जितने भी आपके वो जो वाइटामिन होंगे जो वाटर सॉल्युबल हैं वो आपके लॉस हो जाएंगे. इसी तरह से अगर राइस को बार बार वॉश कर रहे हैं, पल्सेस को बार बार वॉश कर रहे हैं, तो कुछ वाइटामिन एंड जो मिनरल्स होते हैं उनमें से कुछ निकल जाते हैं. विटामिन सी जो है वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय हीट जब उसको कुक किया जाता है. तो इसीलिए देखिए आपको अपने डाइट में रॉ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए. There are a lot of benefits of cooking. It makes food free and safer from microorganisms. It makes food tastier. It softens the material that would otherwise be indigestible. अब देखिए कुकिंग के फायदे क्या हैं. सबसे पहले तो क्या करता है, ये हमारे फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर देता है और पकने के बाद खाना टेस्टी भी हो जाता है. कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो पकने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, अदरवाइज वो इनडाइजेस्टिबल रहते हैं. फूड स्टोरेज. There are two types of food items we consume, perishable and non-perishable. The food which gets spoiled at room temperature if kept for a long time is called perishable food. Example, meat, fish, milk, etc. The food which can be stored at a room temperature for a long time is called non-perishable food. Example, rice, wheat, sugar, jaggery, etc. जो फूड आइटम आपको आप जो रूम टेम्परेचर पर रखते हैं और लंबे समय तक रखा वो ख़राब हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पेरिशेबल. जैसे कि आपका होता है मिल्क, फिश या मीट. कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो लंबे समय तक आपके रूम टेम्परेचर पे ख़राब नहीं होते हैं, वो आपके होते हैं नॉन पेरिशेबल आइटम्स लाइक आपका राइस, व्हीट, जैगरी, शुगर. बिफोर स्टोरिंग फूड आइटम्स इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव पार्टिकल्स ऑफ स्टोन्स, checking for insects and worms. The container should be clean, moisture free and airtight. Perishable food items are stored in refrigerator. Some food items are to be stored in airtight containers. फूड को स्टोर करने से पहले आपको सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए उसमें स्टोन पार्टिकल्स तो नहीं है, इंसेक्ट्स या वर्म्स तो नहीं है. आपका कंटेनर जो है वो क्लीन होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए और एयर टाइट होना चाहिए. और जो आपके पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं यानी जो जल्दी खराब हो जाते हैं उन्हें रेफ्रिजरेटर्स में ही रखना चाहिए. डेफिशिएंसी डिसीजेस. Deficiency diseases occur when a diet lacks necessary nutrients. Intake of an unbalanced diet can lead to malnutrition.
that is poor health. Malnutrition can occur either due to intake of food that is deficient in nutrients or taking food with wrong proportions of nutrients. This eventually leads to disease or disorders in the body. Taking a well-balanced diet can prevent this. Let us now study about some diseases caused due to poor nutrition. The diseases are known as deficiency diseases. Deficiency diseases आपकी क्यों होती हैं? जब हमारी डाइट में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जैसे कि अगर आप अनबैलेंस डाइट ले रहे हैं उसकी वजह से मालन्यूट्रिशन हो सकता है, यानी कि पुअर हेल्थ। अब मालन्यूट्रिशन क्यों हो सकता है? या तो आप जो खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट वो है, या फिर आप रॉन्ग प्रोपोर्शन ले रहे हैं खाने का विद न्यूट्रिएंट्स। तो इससे क्या होता है, इवेंचुअली बीमारियां हो जाती हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बॉडी में। तो चलिए कुछ डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, क्वाशरकर। The deficiency of protein in the diet causes a disease called kwashiorkor. It mainly develops when the child is not fed protein-rich mother's milk and other carbohydrate-rich food after 1 year of age. Symptoms: growth and brain development stops. The abdomen and other body parts get swollen. Discoloration of hair starts. The child becomes thin and weak. अब देखिए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर डाइट में हो जाती है तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड क्वाशरकर, राइट। और ये मेनली कब होती है? जब बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट नहीं मिलती या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते आफ्टर 1 एज। इसके सिम्टम्स क्या है? देखिए, ग्रोथ जो है ब्रेन की वो रुक जाती है, डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है। एब्डोमेन, जैसे आपको देखिए पिक्चर में नजर आ रहा है, एब्डोमेन एकदम से सॉलन हो जाता है, कुछ बॉडी पार्ट सॉलन हो जाते हैं। हेयर का डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है। चाइल्ड बहुत ही थिन एंड वीक हो जाता है। प्रिवेंशन: a protein-rich diet should be given to the child. The diet should include soybean, peanuts, wheat, gram, fish, meat, etc. तो देखिए उसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट देके। ये सारे फूड आइटम्स उसकी डाइट में इंक्लूडेड होने चाहिए। Marasmus is also caused due to deficiency of both carbohydrates and proteins. It usually occurs in infants less than a year of age. अब जो marasmus है ये carbohydrates and protein दोनों की कमी से होता है और ये जनरली उन बच्चों में होता है जो 1 साल से कम होते हैं। This table shows the diseases disorder caused due to deficiency of various ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। देखिए आपको एक टेबल दी गई है, इसमें आपको वाइटामिन्स एंड मिनरल्स दिए गए हैं, उनकी डिफिशियंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है एंड व्हाट आर द सिम्टम्स। फॉर एग्जांपल विटामिन ए की बात करें, इसकी डिफिशियंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। सिम्टम्स क्या हैं? पुअर विजन हो जाता है नाइट में। विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरी बेरी एंड द सिम्टम्स आर मसल्स में वीकनेस होता है और बहुत थोड़ी सी एनर्जी रहती है काम करने के लिए। विटामिन की सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या हैं? ब्लीडिंग गम्स में से ब्लीडिंग होगा, टीथ आपके फॉल हो जाएंगे और वुंड आपके जल्दी से नहीं भरेंगे। विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स। इसमें बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, बेंड हो जाती है इजीली। एंड विटामिन डी की कमी से एक और बीमारी होती है जिसे कहते हैं ऑस्टोमलेशिया। ये एडल्ट्स में होती है, रिकेट्स आपके बच्चों में होती है एंड ऑस्टोमलेशिया आपकी होती है एडल्ट्स में। एंड इसके सिम्टम्स वीक बोन्स स्पेशली बैकबोन। विटामिन के की कमी से होता है ब्लीडिंग डिजीज, ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाता है जिसकी वजह से एक्सेस ब्लीडिंग होती है। आयोडीन की कमी से होता है गोइटर। इसमें क्या होता है कि जो नेक्स के अराउंड ग्लैंड्स होती हैं वो सॉलन अप हो जाती हैं। और चिल्ड्रन में मेंटल डिसेबिलिटी। आयरन की कमी से होता है एनीमिया और इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाता है। कैल्शियम, टूथ डीके एंड वीक बोन्स और इसका सिम्टम है डिगिंग टीथ। पोटेशियम की कमी से होता है आपका हाइपोकैलेमिया एंड इसके सिम्टम है फटीग। अब देखिए मेरास्मस के सिम्टम्स देखते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेरास्मस? Child becomes skinny, growth of brain and its development stops. Ribs look very prominent. Diarrhea. Child cannot move due to lack of energy. इसमें child जो है बच्चा जो है स्किनी हो जाता है, राइट। ब्रेन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका रुक जाता है और आपका डायरिया भी होता है केसेस में। और क्योंकि कमी हो जाती है एनर्जी की वजह से तो चाइल्ड मूव नहीं कर पाते। प्रिवेंशन: द चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड विद प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। तो किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है? अगर बच्चे को कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिच डाइट दी जाए तो। पॉइंट्स टू रिमेंबर: आवर फूड हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स. Carbohydrates and fats are energy giving nutrients. Remember that. Proteins are body building food. Minerals and vitamins are needed for growth and carrying out body functions. Water makes up to 70% weight of the human body.
Food derived from plants are the major sources of roughage for our body. We should take a balanced diet that is rich in all the nutrients. Food processing may alter the quality of food. Deficiency diseases are caused due to lack of minerals and vitamins in the body. Children, I hope आपको चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.